Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to tell you what and why your manifestations are not working and why the relationship you have with yourself is more important than anything. So please, first of all, happy Holi. Second of all, please ignore my looks as I got the intuition to make this video, and hope you like this video. So let's get started. From the very past 2 years, I was struggling in all the areas of my life actually: health, career, money, relationship, all the four areas. And as manifestation introduced to all of us, I started doing scripting, journaling, 369, triple five, mirror technique, two cup method, every method that is out there to manifest the life you want. I felt it was a bed of roses, but ऐसा कुछ नहीं था, वो bed of thorns निकले basically. So मुझे लगा कुछ कमी है, तो आई स्टार्टेड हीलिंग प्रैक्टिसेस, होपोनोपोनो, कर्मा हीलिंग, karmic healing for relationships, this and that. Honestly, it do worked out, but not that much as I have expected. And I realized this thing because from past 1 month, 1 week, I think I started new, I think technique, you would say, not technique actually, new practice, which is not manifestation. So उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आई वॉज इग्नोरिंग माई सेल्फ इन वन सेंटेंस. मैं खुद को इग्नोर कर रही थी, मैं खुद के माइंड, बॉडी और सोल को इग्नोर कर रही थी, और आई वॉज डूइंग जस्ट मैनिफेस्टेशन. काम कर रही थी जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए, बट आई वॉज डूइंग मैनिफेस्टेशन बाय इग्नोरिंग माई सेल्फ. आई रियलाइज़ मैं रिश्तों के पीछे भाग रही हूँ, मैं करियर के पीछे भाग रही हूँ, मैं बिजनेस के पीछे भाग रही हूँ, मैं मनी के पीछे भाग रही हूँ, बट मैं खुद का ध्यान नहीं रख रही. When my mind is saying something to me, I'm not listening. When my body is saying something to me, I'm not listening. My soul is saying something to me, I'm not listening. Why? टाइम ही नहीं है, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं है ना. एंड मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. ऑन अ माइंड लेवल हम क्या गलती कर रहे हैं? हम कोई भी कचरा अपने दिमाग में डाल रहे हैं. आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट वर्दी, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं है, दूसरों का बन जाता है, मेरा नहीं बनता, आई एम नॉट लकी, ये सब हम फीड कर रहे हैं अपने दिमाग को. एंड स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, यूट्यूब, यूट्यूब बंद कर दिया, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स बंद कर दिया, कुछ और. वी आर नॉट गिविंग आवर माइंड रेस्ट. हम अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसको फीड करे जा रहे हैं. We are giving so much information to our mind that is not even required. और honestly, being Gen Z, ईयरपोड्स लगा के रखो, ईयरफोन्स लगा के रखो. क्यों? क्योंकि खुद के साथ बैठने में इतना डर लगता है हमें कि हमारा दिमाग हमें वो ना बोल दे जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं. This is the first and one of the worst realizations I had, that we are so afraid to sit with ourselves, that we keep running and running from ourselves. दिमाग को जब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तब उसके पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्षमता ही नहीं बचती है. ऑन अ बॉडी लेवल, आई वॉज हैबिट ऑफ ईटिंग सो मच जंक that I got severe gut health issues, and my body was saying, listen, I can't take it, but I was like, shut up, I'm not gonna listen you. So which end up resulting in worst gut health issues. और मुझे पहले लग रहा था कि क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्ट चाहिए या डोपामिन चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए आई एम ईटिंग जंक. लेटर ऑन आई रियलाइज आई एम ईटिंग जंक टू अवॉइड अगेन, टू not feel the emptiness I have within myself. My body is begging to me कि भाई सुन ले, but I'm like, नहीं सुनूंगी. On a soul level, I was chasing people since so much long time, since childhood. I chased people for their love, acceptance, and validation, that I ignored myself, I abandoned myself. And from past 1 week, I started talking to my mind. I started having conversation or soft conversation with my mind, for apologizing, to apologize my mind कि I'm sorry dear mind for putting so much content in you that is not even of use. I'm sorry my dear mind for using cuss words. Please forgive me for blaming you.
प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर रिक्रिएटिंग एंड रिपीटिंग दोज थिंग्स. अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सालों पहले कुछ कह दिया, इट जस्ट कीप repeating in my mind over and over and over again. I'm training my mind. I was training my mind to be negative, to be to in a level that I wanted to self harm. Literally, उस level पे चली गई थी मैं. In at my body, जब my body was not accepting food, I'm like, what's wrong? I was underweight. Even today, I am underweight. And when I look myself, I feel like, why? मेरी ही देन है. So I sat with my body. I sat with the emptiness I had within myself. And the more I talked with my body, there is something different, peaceful I felt. Honestly, I started eating healthy. And I felt so bad that जब मैंने पहली बार हेल्दी खाना खाया, माई बॉडी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत ही नहीं थी इतना हेल्दी खाना खाने की. दैट व्हेन आई वाज ईटिंग हेल्दी, आई एम फीलिंग लाइक अगर अभी मैं वॉमिट ना कर दूँ. एंड आई फेल्ट सो डिसहार्टन दैट डे कि शिट, this is the worst I could ever do to my body. And this is what I actually did from the past several years. And on a soul level, as I have told you, I have chased people. I stopped that. मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ. आप अपनी आत्मा को रुला के किसी और की आत्मा से प्यार मांग रहे हो. यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सोल. आप एक ऐसे कप से पानी नहीं ले सकते जिसमें है ही नहीं पानी, और आप एक ऐसे कप को भर नहीं सकते जिसमें होल है. घड़े के अंदर अगर होल होगा, उसमें जितना मर्जी पानी डाल दो वो खाली ही हो जाएगा. ठीक उसी तरह से आपकी सोल है. अगर आपकी सोल के अंदर जो है लव होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो नहीं होल्ड कर पाएगा प्यार को भी. और वो कैपेसिटी जो है वो आप खुद ही दे सकते हैं आपको, अपने आप को. कोई और नहीं दे सकता बाहर से आके. सो दीज आर द थिंग्स आई हैव रियलाइज्ड एंड आई वर्कड ऑन दिस थिंग, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था. टॉक टू योर माइंड, टॉक टू योर बॉडी, टॉक टू योर सोल, सिट विद योर बॉडी एंड ट्रस्ट मी, डू इट. 10 मिनट का टाइमर लगाओ. डू नथिंग, absolutely nothing, and say sorry to your mind, to your body, to your soul. आपको रोना आ जाएगा. यू फील हर चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ. हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, कुछ हाथ तो आ ही नहीं रहा, लेकिन खुद को भी लॉस्ट कर दिया है, खुद को भी बर्बाद कर दिया है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट, एंड आई होप दिस वीडियो reach to those people who actually needed it. All I want to say is मैनिफेस्टेशन तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप उसको वर्दी नहीं, अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगे कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ भाई. I deserve to be in a good job. I deserve to be in a healthy relationship. I deserve to be in a good marriage. Or I deserve to have abundant life. जब आपका खुद का रिश्ता खुद के साथ अच्छा नहीं है, कोई अच्छा प्यारा सा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, यू बी लाइक ना इट्स टू हेल्दी. टॉक्सिक लोगों के पास जाते हैं. फेमिलियर महसूस करा रहा है ना वो आपको. या आप हेल्दी खाना खाओगे, अगेन अनफेमिलियर होगा, बॉडी उसी खाने को रिजेक्ट कर देगी. माइंड में भी नेगेटिव लोगों से आप ज़्यादा अट्रैक्ट होगे अगर आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है. प्लीज़ 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 फर्स्ट अपना रिश्ता खुद से अच्छा कीजिए. जिस दिन आपका रिश्ता खुद से अच्छा होगा, उस दिन चीज़ें बदलने लग जाती हैं. एक इनर शिफ्ट आता है. टॉक्सिक लोगों को आप कट ऑफ करने लग जाते हो, अनहेल्दी फूड को आप रिजेक्ट करने लग जाते हो, एंड यू डोंट चेज to those souls who are not worthy of your love or attention. So yeah, this is the last thing I want to say. Yes, people do manifest things, and you should manifest, but not at the cost of losing yourself. This is all I want to say. सब अपना ध्यान रखो और प्लीज़ अपना रिश्ता खुद के साथ सुधारो. I'm in a journey. I'm not saying that कि मैं डेस्टिनेशन तक पहुँच गई हूँ, बट जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंसेस होंगे वैसे वैसे मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी जितना मुझे ठीक लगेगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.